Good morning, student. Welcome you all. So today we are going to discuss the rules of models. So as you all know that we have already done the first part of this topic, that is what are models. All right. So let's start the rules of model. So let us first see what is modal. Modals verb. What are modals verb? So there are auxiliary verbs. They are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. So ये आपको सबको पता है कि ये auxiliaries verb है, ये कुछ additional और specific meaning देता है to the main verb. तो कौन कौन से modals होते हैं? Can, could, may, might, must, shall, should, ought to, will और would. So how do we use modals? So modals is always used between the subject or the verb, or modal always comes with the main verb. It never comes alone. Alright. So Mary could play the piano. अब देखो क्या था कि जो modals है, modals क्या करते हैं? It's not followed by another modals. Right? कभी another modals को follow नहीं करते हैं. They always comes with the main verb, means the root form of the verb or the base verb. So Mary could play the piano. अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ Mary could can play the piano तो it's wrong. Mary could can. अब दोनों could और can means दोनों models साथ में नहीं आ सकते हैं, right? तो इनको separate करना होता है. So Mary could play the piano और Mary can play the piano. So modal verbs do not have infinitives और ing forms. अब modal verb जो होते हैं वो infinitive और ing forms को नहीं रखते हैं. Like modal verbs are followed by an infinitive without to. Means जो modal verb होते हैं वो followed तो करते हैं means infinitive को. Infinitive क्या होता है? Infinitive it's a base form of the verb. जो first form of the verb होती है वो ही infinitive होती है. Alright, and it always comes without to. Without to ही वो हमेशा आती है, to को हम use नहीं करेंगे. Clear? And see, modals don't have the infinitive form. We can't place to with them or in order to use them in a sentence. अब देखो क्या होता है, modals infinitive form के साथ नहीं आती हैं, but हमेशा क्या हो, to उसके साथ add नहीं हो. जैसे example देखिए आप, we must to get there before them. अब we must to get there before them. अब to get क्या है हमारा main verb, तो main verb के पहले हम to का यूज नहीं करेंगे because must वहाँ पे है. So क्या होगा, we must get there before time. So ये आपको याद रखना है कि to का हम यूज नहीं करेंगे for infinitive, right? To और verb हम जब यूज करते हैं to go, to take, to get, ये सब नहीं करेंगे अगर हम modals का यूज कर रहे हैं. Next is modals don't change according to the number of person of the subject. So you all know modals are same for all the pronouns. हमारे pronouns होते हैं, ठीक है, उनके लिए modals हमेशा सेम होते हैं. जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो होते हैं तो उसके लिए हम चेंज करते हैं. फर्स्ट पर्सन के लिए हम अलग यूज करते हैं कि सपोज अगर फर्स्ट पर्सन ही, शी, इट है तो हम हैज, हैव, डू, डज किसका यूज करेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं. बट इन द केस ऑफ modals we always put means we always use any of the modals with the any of person. ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है कि इसके साथ यूज नहीं कर सकते, उसके साथ यूज नहीं कर सकते. लाइक I can play, he can play, we can play and they can play. I के साथ भी हम can का यूज कर रहे हैं, he के साथ भी, we के साथ भी and they के साथ भी. Clear? So next use the modal verb as it is. अब जो modals verb हैं उनको हम as it is यूज करेंगे. Like don't change its form and turn it into the present, future or past form. Don't add anything to it. You can't add s or ed और ing. अब देखो क्या होता है, हमें as it is यूज करना है. क्लियर? प्रेजेंट पास्ट. अब जब आप टेंस कर रहे थे तो उस टाइम पे आप वर्ब के साथ एस, ई एस, ई डी और आई एन जी का यूज करते थे. बट इन दिस टॉपिक मीन्स मोडाल्स में हम एस, ई एस का यूज नहीं करेंगे हमारे वर्ब के साथ. अब हमारे यहाँ पे वर्ब क्या है, मोडाल. सो जॉन, अब एग्जाम्पल देखो, जॉन कैन स्विम. सो ये करेक्ट सेंटेंस है. अब रॉन्ग सेंटेंस कैसे होंगे देखो आप, अगर जिसमें हम ऐड करते हैं जॉन्स कैन स्विम, अब कैन में हमने एस लगा दिया, ऐसा नहीं होगा. हम सोचेंगे भाई चलो जॉन सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस और ई एस पुट करेंगे. नो, हम एस और ई एस पुट करेंगे बट हमारा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए वहाँ पे.
या सॉरी हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब होना चाहिए, वहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब होना चाहिए, नॉट मोडाल्स, ठीक है। मोडाल्स में एस और एस का हम यूज नहीं करेंगे, तो दीज थ्री ऑफ sentence are wrong. So we should not change the modals verb, leave it as it is. Clear? Next is use the base form of the verb after a modal. अब base form of the verb आपको यूज करनी है, अभी जस्ट मैंने बताया, don't use to or the full infinitive verb to. Clara might join them, Clara might to join them, ये wrong है. You must finish your dinner, you must finish your dinner. It's a correct answer. You should not to smoke, ये गलत है. You should not smoke, the right question answer. So this is a quite common error. So be careful about the to there. Make sure not use the full infinitive form to join after the word might, will, should, may or can. Just use the base form of the verb, which is join. So you can say any of these correct sentence. Alright, so देखो कौन कौन से correct sentence है. Clara join us, Clara might join us, Clara must join us. Clear? To का हमने use नहीं किया. If you need to use modals in the negative form, then use only not after the modal verb. So don't add any extra word anymore. So don't use words like isn't it, doesn't, don't, won't, wasn't, aren't. देखो क्या होता है कि मोडाल्स वर्ब, आपको पता है वर्ब के जस्ट बाद जब हम नेगेटिव यानी नॉट का यूज करते हैं तो वी पुट नॉट आफ्टर ऑल द वर्ब्स. सो सिमिलरली इन द मोडाल्स वी आल्सो पुट नॉट आफ्टर द मोडाल्स, बट डोंट यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स लाइक isn't it, doesn't, don't, want. शॉर्ट फॉर्म जो है आपके वर्ब्स की वो आप मोडाल्स के साथ यूज नहीं करेंगे. यू जस्ट पुट नॉट. See the examples. You should not drink too much. अब आप ये ऐसे लिखोगे you should not drink too much, तो ये तो करेक्ट सेंटेंस है कि you should not drink too much. अब आप ये लिखोगे you don't should drink too much. अब don't भाई do not और should दोनों verbs हैं. अब दो verbs के हम क्या रहेंगे, क्या हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है. ठीक है भाई, डोंट का यूज यानी हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वो मेन वर्ब के साथ ऐड होती है. मोडाल्स भी मेन वर्ब के साथ होती है, बट हम हेल्पिंग वर्ब, मोडाल्स वर्ब और जो मेन वर्ब है तीनों का यूज तो एक साथ नहीं कर सकते ना, राइट. हम इनमें से किसी दो का यूज ही एक साथ कर सकते हैं. तो मोडाल्स के साथ आप डोंट, डू नॉट, डज नॉट इनका यूज नहीं करेंगे. तो यू शुड ड्रिंक टू मच, या आप ये लिख सकते हैं या यू शुड नॉट ड्रिंक टू मच. क्लियर? सो आई डोंट कैन स्विम ये नहीं होगा, आई कैन नॉट स्विम होगा. ऑल राइट. सो रिमेंबर दो दैट देयर इज वन एक्सेप्शन. अब कुछ एक्सेप्शन है, इट्स विद द मोडाल वर्ब हैव टू. अब हैव टू के साथ एक एक्सेप्शन है. व्हाट वाज दैट? लेट्स सी. इफ यू यूज दिस इन द नेगेटिव फॉर्म यू नीड टू से यू डू नॉट हैव टू गो देयर. अगर आपको इसे नेगेटिव फॉर्म मीन्स हैव टू को नेगेटिव में यूज करना है, सो आपको कैसे यूज करना है? यू डू नॉट हैव टू गो. Here you put not in the middle of have to, means middle of have to के भी use नहीं कर सकते, but with the other modals you only say you could not, you might not, you ought not, you shall not and so on. You can see that not always comes after the modal verb. देखो modal verbs के बाद ही not का use करते हैं, but have to एक exception है. अब इसमें क्या है, have to क्या बोल रहा है, मैं अपने बाद not का use नहीं करूँगा, मेरे पहले not का use करो. अब इनके पहले not का use तो हम कैसे करेंगे, उसके साथ कुछ तो verb होनी चाहिए. दैट्स वाई हमने वर्ब ऐड करी है. वर्ब किसके अकॉर्डिंग ऐड होती है? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सो यहाँ पे यू के साथ हम डू का यूज करते हैं. सी दिस एग्जाम्पल, यू के साथ हम डू का यूज करते हैं. दैट्स वाई यू डू नॉट, देन हैव टू का हमने यूज किया. क्लियर? सी द अदर एग्जाम्पल्स. दे डोंट या डू नॉट हैव टू ब्रिंग ऑल दोज थिंग्स. आई डोंट हैव टू सी इट टू बिलीव इट. वी डोंट हैव टू ब्रिंग एम्ब्रेलास. क्लियर? सो हमने यहाँ पे हैव का यूज किया. अब अनदर थिंग इज टू रिमेंबर इज व्हेन यू use not with can to express a negative statement, you always put them together. They actually became one word, cannot and not can not. अब देखो क्या होता है, जब हम can की नेगेटिव फॉर्म यूज करते हैं तो वो होती है कैन नॉट. कैन नॉट को हम सेपरेट करके मीन्स कैन के बाद स्पेस देके और फिर नॉट का यूज नहीं करेंगे. कैन नॉट को हम ज्वाइन करके लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है. तो दिस इज द ओनली टाइम यू ज्वाइन अ मोडाल वर्ब विथ नॉट इनटू वन. यही एक सिंगल टाइम मतलब सिंगल मोडाल है जिसको आप ज्वाइन करके नॉट का यूज करेंगे. बट विद द अदर मोडाल्स नॉट इज ऑलवेज अ सेपरेट वर्ड. अदर मोडाल के साथ जो है नॉट हमेशा सेपरेट रहेगी. ठीक है? शी कैन नॉट कम टू द वेडिंग, कैन नॉट सेम है.
बट अदर मोडाल के साथ अगर हम उनको ज्वाइन कर लेंगे, यानी मे नॉट को भी ज्वाइन कर लिया, विल के साथ नॉट को ज्वाइन कर लिया, तो ये क्या हो जाएंगे, रॉन्ग सेंटेंसेस. So the other then cannot, the other modal should not be joined with not into word. So correct क्या हो जाएगा, she may not come to the wedding. All right. So with this we come to an end. So students, modals may be overwhelming and difficult to remember at first, but the more you practice now, the more you are going to use them properly. Understand? So thank you for watching.